મેં કાંઈ કર્યું નથી. ગુરુની કૃપા હોય તો માણસ ક્યાંનો ક્યાં પહોંચી જાય. બસ ગુરુની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે સમર્પિત ભાવ જોઈએ. એમના ચરણોમાં પડ્યા રહીએ તો ગુણો એમને એમ આવે. હવે વધારે હું નહીં બોલું, પરંતુ સાધ્વીજી ભગવાનના બાબતમાં અમે નાના હતા ને ત્યારે અમે છુપાઈ જતા હતા. અમે 12 વર્ષની ઉંમરમાં દીક્ષા લીધી. ગુરુ મહારાજને બધા સાધ્વીજી ભગવાન તો વંદન કરવા આવે, એમાં મોટા મોટા બધા સાધ્વીજીઓ, અને દૂર હોઈએ તો તરત ગુરુના ચરણોમાં જતા રહીએ. ગુરુમાની પાસે બેસીએ, કોઈ પૂછે નહીં કે શું ભણો છો, શું કરો છો, કાંઈ કોઈ પૂછે નહીં. એટલે અમે સાધ્વીજી ભગવાન તો જ્યાં ઉપાશ્રયમાં પ્રવેશ કરતા તો સીધા ગુરુમા પાસે જતા રહેતા. પરંતુ કોક ને કોક દિવસ તો પકડાઈ જાય. કોક ને કોક દિવસ પકડાય એટલે પૂછી લે, ત્યારે પછી મનમાં થાય કે આપણે આ બધું બરોબર નથી ભણતા, આપણે આ બાકી રહી ગયું, આ બાકી રહી ગયું. પરંતુ સાધ્વીજી ભગવંતોની ટકોર, એ ટકોરના કારણે અમે જેમ જીવનમાં આગળ વધ્યા, બરોબર ભણ્યા, અને ગુરુની કૃપા પહેલા. અમારી પાસે કાંઈ ન હતું, કાંઈ જ નહીં, બસ ચરણોમાં પડ્યા રહે. ગુરુ મહારાજ જેમ કે પ્રમાણે કરીએ, એના કારણે આ બધી શાસન પ્રભાવ ન થાય. તો સાધ્વીજી ભગવંતોએ પણ અમારા ઉપર ખૂબ ઉપકાર કર્યો છે. એમના કારણે ડર ના મરે. અને પછી અમે બોલતા થયા તો સાધ્વીજી ભગવાન કહેવા લાગે કે હા, હવે ડરતા નથી, હવે તો બરોબર બોલે છે. મેં કહું આપની ટકોર, એ ટકોરના કારણે અમે તૈયાર થયા. તેમના ગુણાનુવાદ, એમના ગુણોનું અનુમોદન, એક વસ્તુ ખાસ જોવા જેવી, એ આપણી પાસે નથી રહ્યા. એ અહીંથી જતા રહ્યા, પરંતુ એમનું કાર્ય કરીને ગયા. એ મહત્વની વાત. જે અમે અમારી પરંપરામાં, બુદ્ધિસાગર સુરી મહારાજ સાહેબની પરંપરામાં જે વસ્તુ આવી છે, ઘણા કહે ને ભાઈ યોગા કરો, યોગા કરો, તો ઘણા સમય આસન કરવા માટે. યોગા કરો એટલે સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, મનને શાંત કરીને, એક ધ્યાનથી આરાધના કરીને, ક્યાં સમાધિ મરણ, કોઈ સંસારને યાદ કરતા કરતા નહીં, એકદમ ભગવાનને યાદ કરતા કરતા મારા આત્માનું કલ્યાણ થાય, આત્માની ચિંતા એવી રીતના કરતા કરતા ગયા. બુદ્ધિસાગર સુરી મહારાજ સાહેબ પણ એવી રીતના ગયા, કીર્તિસાગર સુરી મહારાજ સાહેબ પણ એવી રીતના ગયા, સુબોધ સાગર સુરી મહારાજ સાહેબ પણ એ રીતે ગયા. બધા જ એવી રીતે સમાધિ મરણ પ્રાપ્ત કર્યું. કૈલાસ સાગર સુરી મહારાજ એમને પણ. તો આપણે ભાઈ મનમાં તો ભાવ થાય ને, અંદર મનમાં ભાવ થાય કે આપણે પણ સમાધિમાં જઈએ. તો સમાધિમાં કઈ રીતે જવાય? આપણું જીવન સરસ હોય, જીવન સુંદર જીવીએ તો અંતમાં કહેવાય સમાધિ મરણ પ્રાપ્ત થાય. તો જીવનમાં આડું ટેડું કરતા રહીએ તો સમાધિ ના મળે. તો આપણે પણ એવું સરસ જીવન જીવીએ, અને જે બાકી છે જીવન એને વ્યવસ્થિત જીવન બનાવીને સુંદર આરાધના દ્વારા પરમ પદ, મને સંસારને યાદ કરતા નહીં, ભગવાનને યાદ કરતા કરતા, નૌકાને યાદ કરતા કરતા જઈએ તો આપણે સમાધિ મરણ થાય. આ રીતે આપણું જીવન બનાવીએ. એ अनुमोदना के रूप में आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए। पद्म विजय जी महाराज कहते हैं कि गुणों का बारंबार स्मरण करने से, गुणों को बारंबार दोहराने से और गुणों का बारंबार स्मरण करने से उनके गुण हमारे अंदर में आ जाते हैं। और आज हम साध्वी जी भगवंत पुण्य प्रभा श्री जी महाराज साहेब गुणों के अनुमोदन के रूप में हमारे बुद्धि सागर सुरी समुदाय के वयोवृद्ध वडिल साध्वी जी भगवंत, जिनका देवलोक गमन हुआ, उनकी क्या खासियत, आप लोग तो हमसे ज्यादा उनसे परिचय में आए। हम गुरु भगवंत तो मिलना जुलना कैसे होता है, किस प्रकार होता है, परिचय किस प्रकार होता है, और आप तो हमसे ज्यादा परिचय में आए। आप लोगों ने उनसे क्या सीखा और क्या देखा उनके अंदर, और वो खासियत हमारे समुदाय के हर साध्वी जी भगवंत के अंदर में। विचार कीजिए, हमारा समुदाय बुद्धि सागर सुरी समुदाय के अंदर में कहते हैं कि बीजापुर 27 बुद्धि सागर सुरी समुदाय का प्राण है, लेकिन वो प्राण को जीवंत रखा हो तो हमारे साध्वी जी भगवंतों ने जीवंत रखा है। वो प्राण को लेकर के उन्होंने उनकी साधना की है, पूरी 27 को उन्होंने पकड़ करके रखा, सबके साथ में इतना औचित्य विनय पूर्वक का व्यवहार रखा, और ये सब गुण हमारे समुदाय के साध्वी जी भगवंतों को जाता है। उन्होंने 27 को एकजुट होकर के एक डोरे के अंदर में पिरो करके रखा। विचार कीजिए, आप माला गिनते, माला के अंदर में महत्व किसका? आप सभी लोग नौकार वाली गिनते हैं,
एक व्यक्ति ने कहा कि माले के अंदर में मणके का महत्व है, लेकिन कैसे? तो कहते डोरे का महत्व है कि मणके को वो जोड़ करके रखता है। डोरे का महत्व है। हमने आज तक देखा जाए कि माला के अंदर में किसको महत्व दिया? आज तक देखा जाए कहां पर आप माला लेने के लिए जाते हैं, मणका देखते कि डोरा देखते? क्या देखते हैं आप? क्या देखते हैं? ज्वेलर्स होंगे, अगर रत्न की माला आपकी गिनी, किसी ने आपको सजेस्ट किया कि श्रीपाल भाई गुरु नबड़ो छे तो गुरुनो नंगनी माळा राखवी, तो શું જોશો? નંગ જોશો કે ડોરો જોશો? विचार कीजिए, यहाँ पर हम किसको देखेंगे? तो कहते हैं हम मणके को देखेंगे, पल को देखेंगे, मोती को देखेंगे, उसको देखेंगे, लेकिन डोरों ने उसको संभाल करके रखा है। अगर डोरा टूट जाएगा तो सब बिखर जाएंगे, अगर डोरा साबुत है तो सब मणके साबुत है। तो ये ऐसा ही काम इन साध्वी जी भगवंतों ने हमारे समुदाय के लिए किया, सबको एक साथ रख करके डोरे का जैसा काम किया। मणके तो कितने ही मिल गए, लेकिन उसको पिरो करके, डोरे के अंदर में पिरो करके उसको गिनने लायक बनाया। ऐसा गुरु भगवंतों ने। और उनके गुण क्या गए तो देखा जाए सबसे अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा। देखा जाए व्यवहार की परंपरा तो हमारे समुदाय में पहले से होती है। हमारे सबका व्यवहार देखिए एक चीज है। हमारे गुरु भगवंत ने हमारे को सबसे पहले व्यवहार की दीक्षा दी, व्यवहार की दीक्षा दी, फिर व्यवहार की शिक्षा दी। विचार कीजिए, जितने भी गुरु भगवंत के शिष्य परंपरा के अंदर में आए, बुद्धि सागर सूरी महाराज समुदाय के अंदर में सभी गुरु भगवंतों को देख लीजिए व्यवहार के अंदर में। और आपके संसार के अंतर्गत आप क्या देखते हैं? फर्स्ट योर नेचर, देन हैबिट एंड देन योर एटिकेट्स। आप किसको रूल फॉलो करते हैं? फर्स्ट आपका स्वभाव को फॉलो करते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आपकी आदत कैसी है, आपके एटिकेट्स कैसे है, आपका व्यवहार कैसा। और यहाँ पर गुरु भगवंत भी आने के बाद के अंतर्गत में वही दीक्षा के अंदर में देते हैं कि सबसे पहला आपका व्यवहार अच्छा होगा, तभी जाकर के। मतलब क्या? व्यवहार का मतलब क्या? जीवन के अंदर में किसका उपकार? पानी का उपकार कि हवा का उपकार? किसका उपकार? दोनों का नहीं है। आप 24 उपवास कर सकते हैं, लेकिन 24 हवा के बिना उपवास हो सकता है? नहीं हो सकता है। 24 उपवास, कितने ही लोग संवत्सरी का 24 उपवास करते हैं कि साहब पानी पीते पित्त हो जाता है, वोमिटिंग होती है, प्रतिक्रमण में इतना देर बैठना पड़ता है, उससे पहले बारसा सूत्र के अंदर में बैठना पड़ता है, प्रतिक्रमण में बैठना पड़ता है, अनइजीनेस लगता है, इसलिए पानी पीता ही नहीं, 24 उपवास करता हूँ, शांति है। लेकिन 24 के बिना हवा के उपवास किया हो किसी ने ऐसा? कहते नहीं। जीवन के अंदर में सबसे बड़ा उपकार ये हवा का है, और वहाँ पर जो विजिबल है उससे ज्यादा जो इनविजिबल है उसका उपकार। और इनविजिबल क्या है? तो कहते गुरु का आशीर्वाद है। वो दिखता नहीं है, गुरु का आशीर्वाद। कभी देखा आपने गुरु का आशीर्वाद? ओनली फीलिंग। आपको वो दिखता रही है। गुरु का आशीर्वाद कैसा होता है? गुरु के आशीर्वाद के अंतर्गत में सब कुछ आ जाता है, वो फीलिंग आ जाती है, वो जो विजिबल नहीं होता है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर में आपका क्या डायलॉग होता है? जो दिखता है वही दिखता है। क्या है आपका? जो दिखता है वही दिखता। लोग कहते हैं कि खोजने से भगवान मिलते हैं, और शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि मेहनत करने से भगवान मिलते हैं, खोजने से भगवान मिलते हैं। आप क्या करते हो? खोजते हो कि मेहनत करते हो? क्या करते तो हो ही ना। तो यहाँ पर भी वैसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है। कहाँ? जामनगर में जन्म लिया, जामनगर के वतनी कहलाए, और यहाँ पर आकर के दीक्षित हुआ। दीक्षित कौन से गांव में हुए? तुवर गांव। संखेश्वर जाते समय तुवर गांव, संखेश्वर से पहला ही मुकाम आता 15 से 20 किलोमीटर दूर के अंदर में तुवर गांव। आज एक भी घर नहीं, और वहीं पर दीक्षित हुए। और दीक्षित होने के बाद के अंतर्गत में पूरे दुनिया के अंदर में नाम किया। उनके व्यवहार से, उनके उस प्रकार के आचरण से उन्होंने नाम किया। और बुद्धिसागर समुदाय के अंतर्गत में उन्होंने दीक्षित प्राप्त करने के बाद के अंतर्गत बुद्धिसागर समुदाय को भी ऊपर साध्वी जी भगवंत को भी ऊपर। विचार कीजिए ये समुदाय की कितनी गरिमा। ये सदन आप सब गणमान्य व्यक्ति है ना? आप सब गणमान्य व्यक्ति है, लेकिन हमारे पास गणमान्य व्यक्तित्व है। व्यक्ति और व्यक्तित्व में फर्क है।
आप सब व्यक्ति हो सकते हैं, गणमान्य व्यक्ति, क्योंकि आजकल का क्राइटेरिया क्या है, मनी से ही आपका गणमान्यता गिनी जाती है। आपका क्राइटेरिया के अंदर में एवरीथिंग वी कैन काउंट विथ मनी, एवरीथिंग। तो आपकी गणमान्यता कैसी होती है? तो व्यक्ति के द्वारा गणमान्यता, तो व्यक्ति के पास पैसा है तो गणमान्यता, लेकिन हमारे पास में गणमान्य व्यक्तित्व है, और उसमें से एक व्यक्तित्व आपके सामने ही बैठे हुए, एक व्यक्तित्व की निष्ठा के अंदर में सब काम होने लग जाते। तो हमको ये सब व्यक्तित्व को देख करके, व्यक्तित्व को हाथ में लेकर के और उनके अनुसार हमको कार्य करना। बाकी साध्वी जी भगवंत से देखा जाए, मैं तो बहुत छोटा साधक, मैं तो मेरे से वडील गुरु भगवंत, विचार कीजिए, मेरे गुरु भगवंत विनय सागर सुभाष कहते थे कि हमने दीक्षा ली, उसके बाद से ही साध्वी जी भगवंत को देखा। तब साध्वी जी भगवंत तब से ही प्रेमाद पूर्वक व्यवहार करती थी, और साध्वी जी भगवंत के पास में हम लोग जाते थे तो हम लोगों को वो पूछती थे क्या अभ्यास चल रहा है। कुसुम श्री जी महाराज हो गए, सब गणमान्य मतलब बड़े बड़े साध्वी जी भगवंत हर पूछते थे कि क्या अभ्यास चल रहा है, क्या पढ़ रहे। कि साधुओं को चौपड़ी नहीं होनी चाहिए हाथ में, किताबें नहीं होनी चाहिए। साधुओं के हाथ में क्या होना चाहिए? व्रत होनी चाहिए। साधुओं को व्रत का अधिकार है, गृहस्थों को पुस्तक का अधिकार है। क्यों अधिकार है मालूम? क्योंकि ऑर्डर वाइज कभी साधु भगवंत ऑर्डर वाइज ही रहते हैं, गृहस्थ कभी ऑर्डर वाइज रहता ही नहीं। इसीलिए व्रत में पाना फेरवाई जाए, तो कहिए ना पाना फेरवाई जाए तो दिमाग फेरवाई जाए, અને પુસ્તકમાં પાનું ફેરો તો પાનું એમને જ રહે। बस वही सब कारण से। और आज इतने बड़े साध्वी जी भगवंत की गुणानुवाद सभा के अंदर में नंबर पहला ही मेरा लग गया, नंबर ही लग गया। आया ही अभी और आया ही सीधा, फिर भरे भाण आया ने भाणु तैयार मिली गया। तो उसके अंदर में तो बस हमारे ही ऐसे ही गुण साध्वी जी भगवंत के गुण हमारे अंदर में आए, हमारे अंदर में भी प्रेमान भाव आए, हमारे अंदर में भी सभी को लेकर के चलने की भावना आए, हमारे अंदर में भी ये सब गुणों का आविर्भाव हो, गुणों का समागम हो। यही परमेश्वर से प्रार्थना करते, जिना क्या विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो क्षमा